Hello, hi, namaskar, Jai Jagannath. Welcome back to my channel A New Hope. Guys, those who are preparing for AMRS, TGT, PGT, Principal, Vice Principal and other TET exam, इस जो वीडियो है दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज बिकॉज जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सारी जो स्टेट लेवल का टीटी बोलो आप और कोई भी पीजीटी टीजीटी के बाद का वो सारी एग्ज़ाम में इंग्लिश का लैंग्वेज कंपलसरी होता है. So please, this video is very important for you. Here we are discussing about some MCQs related to the preparation and English language. Please to watch this video till the end and please do uh, recall all these things concept which you studied earlier during your matriculation and plus 2 level, because this common sense or this knowledge will going to help us in our examination. So thank you guys for your views and support. Please do subscribe my channel, share and like this video. Let us start the video. फर्स्ट जो हमारे इंग्लिश में है, इस वीडियो को मैं हिंदी में नहीं ट्रांसलेट करी हूँ क्योंकि इस जो वीडियो इंग्लिश में है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है हर कोई कैंडिडेट के लिए, इसीलिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करना कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा उसमें. जो इंग्लिश का लैंग्वेज है वो कंपलसरी है सारे कैंडिडेट के लिए. सो इस वीडियो को आप इंग्लिश में ही समझिए, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर कर बता दूंगी. सो प्लीज स्टार्ट द वीडियो. लर्निंग ए लैंग्वेज फर्स्ट है हमारे रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. Question number 1 to 9 by selecting the correct options or most appropriate option. Okay, first of all, in your the reading comprehension, which is most important for our English language. Learning a language, I read it very fastly. Please do read slowly by pausing this video. Okay, learning a language under any circumstances requires hard work and concentration. However, the circumstances can make a difference in both quality and quantity. Most foreign language students learn in a classroom from a textbook. In a classroom, language learning can be controlled so that all the necessary structures are taught. Highly motivated students can thus learn the language efficiently and quickly. Learning on streets and in the markets from experience and need can be effective, although the student learns only what he happens to need in a haphazard way. Some language students find this real life situation more meaningfully because the student's success in fulfilling their needs depends on their language ability. However, shopkeepers are more likely to be tolerant of incorrect grammar than classroom teachers. So, mispronunciations and error will not matter much. Nevertheless, the rewards are different from the type of language learning situations. They are immediate goods bought in a store. In the real life, were delayed until a quiz or oral recital for the classroom learner. The kind of language learned in each setting differs too. In the classroom, the student is more likely to learn the grammatical language of educated people. The language learned out of necessity often lacks the fine details of the classroom variety and might include informal expressions such as slang. The people learning on the street must be easily understood. Therefore, they might actually sound more like native speakers, although not necessarily educated people. So, a combination of classroom instruction and the experience of using language in the street will result in the best language learning for all. So, first of all, I would like to say to all of you, जो पैसेज को आप पढ़ रही है उस पर जो लैंग्वेज है, जो टर्म होता है, एक सेंटेंस होता है, उसको आप ध्यान से देखिए. Like a combination of classroom instruction, like experience of using language, some words like grammatical language, yeah, like other language, other words like haphazard. इस वर्ड को like वो पूछ सकती है कोई सिनोनिमस एंटोनिमस और कोई ग्रामेटिकल एरर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वो सारी चीज को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अब हम लैंग्वेज के बारे में ये सारी डिटेल्स पढ़ ली. पैसेज में देखते हैं क्वेश्चंस क्या है. लैंग्वेज, द क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इस जो पैसेज को हमें पढ़ी उसमें 9 क्वेश्चंस है. उस 9 क्वेश्चन जो पैसेज में ही डिराइव हुआ है, तो हमको पैसेज से 9 क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगी. लैंग्वेज नीड्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन आर फुलफिल्ड बाय, जो लैंग्वेज नीड्स है ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन आर फुलफिल्ड बाय
व्हाट आर द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर. ओके. स्टडिंग टेक्स्ट बुक केयरफुली, जो हम केयरफुली टेक्स्ट बुक पढ़ें तो लैंग्वेज नीड्स है रियल लाइफ सिचुएशन, हमको रियल लाइफ सिचुएशन का जो नीड्स है, द बेसिक नीड्स विच विल बी फुलफिल्ड बाय लैंग्वेज इन द रियल लाइफ कैन बी फुलफिल्ड बाय आइदर स्टडिंग टेक्स्ट बुक केयरफुली, हमको टेक्स्ट बुक पढ़ने से केयरफुल से हम मिल जाएगा, और लर्निंग द लैंग्वेज स्ट्रक्चर को पढ़ने से हमको हो जाएगा, सीखने से, लर्निंग ऑन द स्ट्रीट में सीखने से हो जाएगा, और लर्निंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, हमको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है वो हो जाएगा. लैंग्वेज नीड्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन आर फुलफिल्ड बाय लर्निंग ऑन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में हम यूजिंग करने के समय, हम व्यवहार करने के समय जो स्ट्रीट में है वो हमको लर्निंग लैंग्वेज नीड्स जो फुलफिल होगा वो लर्निंग ऑन द स्ट्रीट. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. देन which of the following statement is not true, इनमें से कौन सा 4 में ऑप्शन है और which is not true, वो सही नहीं है. shopkeepers are intolerant of incorrect pronunciation, वो तो गलत है, यहाँ पर ये ट्रू नहीं है. रियल लाइफ सिचुएशन आर मोर मीनिंगफुल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, इज इज ट्रू. Then classroom learning can be tested in an oral recital, this is also true. Then foreign students learn language mostly from textbook, this is also true. Then option number 2, 3, 4 are true, which is that option number 1 is not correct. So option number 1 for the question number 2 is the correct answer, जो कि shopkeepers are not intolerant and incorrect pronunciation for pronunciation. Okay. Then question number 3, study the following statement. Okay, or read the following statement. At school, one learns the language of educated people. This is correct. Whatever we derived from the passage, if you guys do remember all the sentence I read, language learned on the street includes the use of slang. ये सही है या गलत है, हम उसको ऑप्शन को डिराइव कर हम जानेंगे. Option number 1, A is right and B is wrong. Option number 2, A is wrong and B is right. Option number 3, both A and B are right. वो सही दोनों ही है, तो option number 3 is the correct answer for question number 3. Then question number 4, which part of the speech is the underlined word in the following sentence? The kind of language learned in each setting differs to, जो हमारे यहाँ पर है, the kind of language learned in each setting differs to. Question number 4, determiner यहाँ पर है हमारे, the kind of language learned in each setting differs to. Okay. Then study the following phrase, which part of speech is the underlined word, जो कि but delayed until a quiz, जो हमारा है, जो वर्ड है हमारे यहाँ पर, बट डिलेड अंटिल ए क्विज, यहाँ पर क्या है, स्टडी द फॉलोइंग पेज, व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड, जो यहाँ पर वर्ड है डिलेड अंटिल ए क्विज. क्वेश्चन नंबर 5 वो है ऑप्शन नंबर 3, अंटिल जो है यहाँ पर, बट डिलेड अंटिल ए क्विज, बट conjunction. Okay, option number 3 is the right answer for question number 5. Then what does the word motivated mean in the following phrase? What does the word motivated mean in the following phrase? Highly motivated student can thus intelligent, resourceful, model, interested. जो है हमारे 6 number question. Highly motivated students can thus be what type of their behavior, like intelligent, resourceful, model, or interested. Option number 4 is the correct answer. Then question number 7, dash in a haphazard way, the word haphazard means what? Dangerous, unorganized, safe, or proper. haphazard का मतलब क्या है यहाँ पर? Question number 7, unorganized. Okay, option number 2 is the correct answer. Then the best place to correctly and quickly learn a foreign language is only the classroom, only the market, both the classroom and the market, or home. Option number 1 is the correct answer. Foreign language can be correctly and quickly learned in a classroom. Then question number 9, a textbook. Now what? A textbook, इनमें से 4 में से कौन सा सही आंसर है, appropriate option है? Controls language learning, motivates the students, teaches what a student need,
इज एन inexpensive tool of learning. क्या है इसमें टेक्स्ट बुक? कंट्रोल्स लैंग्वेज लर्निंग. ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक में हमारे ग्रामर होते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्शन के तरह हम क्या क्या जाने क्या क्या नहीं जाने वो डिटेल्स में होते हैं. मोटिवेट स्टूडेंट्स इट डिफरेंट थिंग. टीचर्स व्हाट स्टूडेंट्स नीड, that is our teaching learning process, but a textbook can control language learning. जो कि हमारे स्लैंग ना सीखे, जो प्रोनाउंसिएशन सीखे अच्छी तरह से, जो हमारे स्पेलिंग एरर सीखे, जो और भी सारे जो रिलेटेड टू ग्रामेटिकल एरर्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू लैंग्वेज. देन क्वेश्चन नंबर 10 to 15. ओके, ये जो अगले हमारे पैसेज है. बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful water around you called and the wonderful grass upon your breast world. You are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the mills, and the talks it to itself on the tops of the hills. You friendly, we earth, how far do you go with the wheat fields that nod and the rivers that flow with the cities and gardens and cliffs and isles and people upon you for the thousand of miles? Ah, you are so big, great, and I am so small. I tremble to think you world at all. And yet, when I said my prayers today, I whispers inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love one thing and the earth cannot. ओके, ये पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे एमसीक्यूज. अब क्वेश्चन नंबर 10. ओके, ये पैसेज को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, देन हम क्वेश्चन नंबर 10 से 15 हम उसके बाद करेंगे सॉल्व. Okay, then the cities, question number 10. The cities, gardens, cliffs, and the cells show that the earth is huge, friendly, small, well populated. Question number 10. The earth is friendly, which is the word is also used in the passage. Okay, the word is also used in the passage. So, the question number 10 का जो आंसर है वो है friendly. Then question number 11. In the extract, the poet has compared to whom to what? Okay. Question number 11. Man with the earth, world with the earth, world with the earth with the air. किसके साथ किसका कंपैरिजन हुआ है यहाँ पर? पोइट किसके साथ किसका कंपैरिजन करी? Man with the earth, world with the earth, world with the earth with the air. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. मैन के साथ यार्थ को वो यहाँ पर पोएट कंपैरिजन करिए. ओके, मैन विथ द यार्थ. एंड क्वेश्चन नंबर 12. मोड ऑफ द स्पीकर इन ऑल ऑफ दिस लाइन इज लाइक सीरियस, जॉयस, सैड और इंट्रोस्पेक्टिव. क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 ऑप्शन में क्या है यहाँ पर? सीरियस था यहाँ पर? बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पर कोई सीरियस टॉपिक का बात हो रहा है. जॉयस था, हाँ, वो बहुत खुशी में वो चीज कह रहे थे, वो लाइन्स जो लिख रहे थे पोएम का, वो यहाँ पर होता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. द फिगर ऑफ ए स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 13. स्माइल, शाइनोसोडिक, ओंटोमोपोइक, पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो है पर्सोनिफिकेशन, और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर द फिगर ऑफ ए स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्स्ट्रा, जो कि फर्स्ट स्टैंजा में हमने यूज किए थे जो पोएट ने, उसमें हो. ऑप्शन नंबर 4 पर्सोनिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर. देन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फेस एंड rules the meals is what? Like 4. Option number 4 is here. Then question number 14. The figure of speech used in the face and rules the meals is. आप एक बार फिर से वो पैसेज पढ़ लो, उसके बाद ये आंसर करना. अगर आपको याद है वो चीज तो यू कैन रीड द ऑप्शंस एंड आंसर आल्सो. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओनोमोटो पोयाए. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे? देन क्वेश्चन नंबर 15. द ब्यूटिफुल ड्रेस worn by the yacht is made of what? Mills and the hills,
गार्डन्स एंड द व्हीट फील्ड्स, वाटर एंड ग्रास, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वाटर एंड ग्रास, जो कि एक ड्रेस की तरह, एक अटायर की तरह वो याद को ढक कर रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 16, a teacher asks her learners to collect words, phrases, on various aspects they see and notice in their markets and state. Later, the learners write the words and pages according to the category and discuss on them in the class. What is the practice known as? Topic words learning, genre-based words, एक्टिव वोकाबुलरी, थेमाटिक वोकाबुलरी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 वो है हमारे कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो है थेमाटिक वोकाबुलरी लर्निंग। जो क्या ए टीचर आस्क्स लर्नर्स टू कलेक्ट वर्ड्स, वो वर्ड्स एंड पेजेस को कलेक्ट करने के लिए वेरियस एस्पेक्ट दे सी एंड नोटिस इन देयर मार्केट, जो कि बाहरी दुनिया में, स्ट्रीट में, मार्केट में, पब में दिख रहा है। लेटर द लर्नर्स राइट द वर्ड एंड पेजेस अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एंड डिस्कशन इन द क्लास, जो कि क्लास के अनुसार, वो डिस्कशन के अनुसार ही सजा रही है और कैटेगराइज कर रहे हैं। वो क्या है थेमेटिक vocabulary learning। then what does CLIL stand for? वो CLIL stand for what? content language interlearning, content and language based interesting learning, content and language integrated learning, contest for language integrated learning। कौन सी यहाँ पर सही आंसर है? what does CLIL stand for? ये हमारे टीचिंग लर्निंग का, जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 से। ओके यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। ओके CLIL, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। Which of the following statement is correct? Receptive vocabulary are words we speak and productive vocabulary are words we hear. Receptive vocabulary are words we recognize when we hear or see, and productive vocabulary are words we speak or write. Then receptive vocabulary are words we discourse with people, and productive vocabulary are words in written text only. Or words from other language are receptive vocabulary and words from native language are productive vocabulary। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि receptive vocabulary क्या है एंड productive vocabulary क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज को आपको समझना है, वो डिफरेंट डिफरेंट के तरीका में वो यहाँ पर बताए। प्लीज टू रीड केयरफुली ऑल द ऑप्शंस। रेसिप्टिव वोकैबुलरी, व्हाट इज रेसिप्टिव वोकैबुलरी एंड व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लाइक रेसिप्टिव वोकैबुलरी आर वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी, एंड प्रोडक्टिव वोकैबुलरी आर वर्ड्स वी स्पीक और राइट। ओके, रेसिप्टिव वोकैबुलरी है यहाँ पर जो कि द वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी, हम जब भी सुनाई देता है या कोई देखते हैं उसके बाद जो वर्ड्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो रेसिप्टिव है, सुनकर और देखकर। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स वो स्पीक कर राइट, जो कि हम कह सके और लिख सके। ठीक है। Then question number 19, a teacher divides her class into groups of 4 and reads out a text of about 6 sentences. Learners listen to and jot down important words and pages. The teacher read out the text the second time. The learners discuss the groups and jotted down words and recreate the text nearer to the one read out by the teacher. What is this task known as? ये जो सारी यहाँ पर जो टास्क हमने बताए वो क्या है? पहले क्या हुआ, टीचर डिवाइड्स और क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4, 4 ही विभाग में वो विभाजित कर दिया। एंड रीड आउट ए टेक्स्ट ऑफ अबाउट 6 सेंटेंस, 6 सेंटेंस का वो एक टेक्स्ट पढ़ा, उसके बाद सेंटेंस। देन लर्नर्स लिसन टू एंड जट डाउन इम्पोर्टेंट वर्ड्स। देन जो सुन रहे थे, जो स्टूडेंट होते हैं वो सुने, उसको जट डाउन किया वो वर्ड्स को, इम्पोर्टेंट वर्ड को, फेजेस को। देन टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट इन द सेकेंड टाइम, फिर दूसरे बात और एक बार पढ़ा। The learner discussed the groups and jotted down words and recreate the text nearer to the one read out by the teacher. What is this taxonomy? ये जो सारे कार्यक्रम क्या है? Composition dictation, mutual dictation, punctuation dictation, real dictation. Question number 19 का आंसर क्या है? Composition dictation. Okay, option number 1 is the correct answer. सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 20, इंटेंसिव रीडिंग रिफर्स टू व्हाट। हम इंटेंसिव रीडिंग किसको कहे? comprehensive and intensive reading a text for detailed information, reading a text for pleasure, reading a text for editing, reading a text for someone else। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जो कि रीडिंग ए बुक और रीडिंग
ए टेक्स्ट फॉर ए डिटेल इन्फॉर्मेशन, हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है या जानना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, नोइंग ए वर्ड मीन्स व्हाट, हम एक शब्द को जाने तो क्या है वो मीनिंग क्या है उसमें। हाउ, वेयर एंड व्हेन इट इज यूज्ड, कहाँ पर कैसे और कौन यहाँ इसको यूज किया है। हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, कैसे बोस प्रोनाउंसिएशन को स्पेल करता है। हु स्पीक द वर्ड, कौन कहता है। टू नो द, टू राइट द वर्ड, हम जाने लिखने के लिए इस वर्ड को हम जाने। तो क्या है वो नोइंग ए वर्ड्स मीन्स, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हाउ, वेयर एंड व्हेन इट इज यूज्ड, कैसे हम इसको यूज करें, कहाँ पर यूज करें, कब यूज करें। ठीक है। Then question number 22. Which typology of question does the following question belong to? Imagine you are a narrator of the story. Write an entry in your diary about your experience is about 100 words. जो कि informative question है वो वहाँ पर, inferential question, close question, explorative, extrapolative question वो क्या है। क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर टाइप, which typology of question does the following question belong to? इमेजिन यू आर ए नैरेटर, आप एक स्टोरी राइटर के एक नैरेटर हो। राइट एन एंट्री इन योर डायरी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, वो क्या है वो, उसको हम क्या कहते हैं 22 को, हम यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा पोलेटिव क्वेश्चन कहते हैं। एंड पोइट्री टीचिंग इज व्हाट, टू लर्न वर्ड्स एंड फेजेस, हम वर्ड या फेजेस को सीखने के लिए पढ़ते हैं, पोएट्री रीडिंग का टीचिंग करते हैं। टू लर्न पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस को हमको सिखाने के लिए वो पोएट्री टीचिंग होता है। फॉर एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, हमको एंजॉय करने के लिए और एप्रिसिएशन दिलाने के लिए। टू राइट ए क्रिटिकल कमेंटरी, एक क्रिटिकल कमेंटरी हमको लिखने के लिए वो पोएट्री टीचिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, फॉर एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। Okay, then question number 24, learning outcomes aims at what? Output oriented learning, achieving maximum levels of learning, achieving minimum levels of learning, ensuring all the competencies are acquired by learners। कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है कि लर्निंग का आउटकम क्या, एम एट व्हाट। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ensuring all the competencies are acquired by learners। And question number 25 है, टीचर्स brings a newspaper to her class, एक V3I जो कि 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स के लिए, एंड ask them to find some advertisement, किस एडवर्टाइजमेंट की वो फाइंड आउट करने के लिए पूछा स्टूडेंट को। सी देन ask them to list out how advertisement are design, एडवर्टाइजमेंट कैसे डिजाइन होता है वो उन्होंने स्टूडेंट को पूछा। देन व्हाट द एडवर्टाइजमेंट कंटेंट्स, एडवर्टाइजमेंट एक एडवर्टाइजमेंट क्या क्या उसमें थे। व्हाट इज द न्यूज़पेपर हियर, यहाँ पर न्यूज़पेपर क्या है। फॉर रीडिंग, रीडिंग के लिए। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, एक लैंग्वेज लर्निंग का एक इंस्ट्रूमेंट हो। ए टेक्निक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग का एक तरीका हो, एक टेक्निक हो। मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, एक लैंग्वेज लर्निंग का एक स्टडी या मटेरियल हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट हियर। मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, एक मटेरियल है न्यूज़पेपर जो कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 assign supplementary and complementary roles to English language, that means what? English language जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री रोल्स टू इंग्लिश लैंग्वेज को जो दिया गया है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग टू अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, जो अदर हम लैंग्वेज पढ़े उसको सपोर्ट करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज नथिंग टू डू विथ टीचिंग लर्निंग फॉर अदर लैंग्वेज के पढ़ाने के सहित उसको समझने के सहित उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज ए हिंड्रांसेस टू लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज, ये एक बहुत बड़ा हिंड्रांस है, जैसे कि ऑब्स्टेकल्स है हमारे लिए अदर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वायोलेट्स द मदर टंग लैंग्वेज बेस्ड लैंग्वेज एजुकेशन, जो कि हमारे मदर टंग लैंग्वेज हम जो पढ़ रहे हैं रीजनल बेस्ड लैंग्वेज उसको वायोलेट्स करते हैं। वो क्या है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर्स लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट, जो कि हम इंग्लिश समझे उसके बाद बहुत सारी हमारे सब्जेक्ट होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जैसे कि साइंस का सब्जेक्ट कहो वो समझने के लिए, और अदर लैंग्वेज जो कि रिलेटेड टू इंग्लिश, इसीलिए हमारी इंग्लिश सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज का रोल प्ले कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, ए रीडर यूजेस हर प्रायर नॉलेज मेक्स सेमाटिक cues and syntactic
cues, then moves to other more specific information. What model of reading the reader here adopts? कौन सी मॉडल यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो कि semantic cues and syntactic cues. Okay. बॉटम अप मॉडल, टॉप डाउन मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, होल लैंग्वेज मॉडल, यहाँ पर कौन सी सही है? जो कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, टॉप डाउन मॉडल. And drilling is a teaching learning technique for a strategy in what? Constructive language teaching, structuralism, communicative learning teaching, lexical approach. यहाँ पर ड्रिलिंग कौन सी टीचिंग लर्निंग टेक्निक है स्ट्रैटेजी में? Question number 28, option number 2 is the correct answer, structuralism. Okay. Then question number 29, which of the following statement is true of language learning? First language interface in the learning of second language. जो कि फर्स्ट लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं वो लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज का एक इंटरफेसेस. फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज. जो हम पहला लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो सेकंड लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है उसको सीखने के लिए. लैंग्वेज लर्निंग हैज नथिंग टू डू विथ कंटेंट लर्निंग. एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल्सो डिस्क्रीट. कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है जो कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए? 29 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज. यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग का यही ऑप्शन ही सही है. देन क्वेश्चन नंबर 30, मल्टीलिंगुअलिज्म आज ए रेशियोस इन एजुकेशन एम्स एट व्हाट? जो मल्टीलिंगुअलिज्म रेशियोस होता है लैंग्वेज एजुकेशन में, जैसे कि 3 टायर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज. मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, making learners learn as many as language as possible, using classical language for teaching learning, enabling to learning language for jobs and mother tongue for culture. What is the correct answer here? Making use of languages for learners to teaching and learning. Question number 30 का ऑप्शन नंबर 1 इज द सही आंसर. जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म को हमने क्यों ऐड किया है टीचिंग लर्निंग या एजुकेशन प्रोसेस में, उसका सही आंसर है क्योंकि मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज एज लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग के लिए हम वो सारी लैंग्वेज को हम सिखा सके या पढ़ा सके एक लर्नर्स को. तो गाइज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो ओनली, एंड वी वुड लाइक टू ऐड and produce more MCQs and on the CBT model of EMRS, TGT, PGT and other TET and CTT exam based syllabus. So please guys do refer all these series videos, preparation videos for EMRS and other exams. Please this all videos is designed with a strict syllabus to all mixed to a combination syllabus, a holistic approach. So don't confuse it a bit. Please do subscribe my channel, share and like the videos. Stay tuned till the second video, till the next video. So thank you guys. Have a nice and good night.